Hello students, today we are going to discuss the topic methods to calculate national income. In this very lecture we will discuss how to solve the numerical problems with the different methods to calculate national income. There are three methods for calculating national income. These are product method or value added method, income method and expenditure method. As you know, we can calculate national income by calculating the gross product or the value added during an accounting year, or by the factor income earned by the factors of production during an accounting year, or by calculating the expenditure of the all units making expenditure, final consumption expenditure or investment expenditure. By adding all these expenditure we can calculate national income through expenditure method. So first of all we will discuss product method. One thing you must note that to calculate national income from any method we should follow the base formula for that. So in product method, the base formula is gross domestic product at market price. It means the thing which we calculate first, which we get first, will be GDP at market price. And the GDP at market price is value of output minus intermediate consumption. Students, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज होने से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, विच एवर एग्रीगेट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट, बट यू शुड गो विद दिस फॉर्मूला ओनली, एंड देन फाइनली वी विल रीच the aggregate which is asked in the question. So there is GDP at market price, which we calculate value of output minus intermediate consumption. If we are given value of output directly, then there is no problem. We will take that data, value of output, and then subtract intermediate consumption. But if we are not given value of output, then we have to calculate value of output. Value of output is sales plus change in stock. And sales will be quantity of goods and services produced multiplied by price level. And this means sales will be P multiplied by Q. And the change in stock is closing stock minus opening stock. Okay? Closing stock in the year minus opening stock. Why we doing so? The question is why we doing so? आंसर ये है बच्चों कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, तो हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमारा काम क्यों नहीं चला? हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस किया, इट्स ओके. जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट क्यों नहीं हो सकती? रीज़न इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मे नॉट सोल्ड आउट ऑन दैट ईयर ओनली. मीन्स कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है किसी अकाउंटिंग ईयर में, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा आउटपुट उसी अकाउंटिंग ईयर में सेल भी हो जाए, उसी अकाउंटिंग ईयर में वो सेल भी हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. देयर मे बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड फाइनल गुड्स विद द प्रोड्यूसर्स, बट वो प्रोड्यूस तो उसी अकाउंटिंग ईयर में हुआ है. सो वी हैव टू take in account this change in stock. So this will be closing stock minus opening stock. कि जब वो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास कितना स्टॉक था जो अनसोल्ड है अभी तक, जो अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ है. एंड नाउ विद द एंड ऑफ द ईयर
क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब वो स्टॉक कितना है हमारे पास जो सोल्ड आउट नहीं हुआ है, दैट मीन दैट वेरी कंपोनेंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट वेरी अकाउंटिंग ईयर फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ओके, अब जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज़ कि वो सिर्फ ये चीज़ें करते चले जाते हैं, वी हैव टू ऐड सेल्स, वी हैव टू ऐड चेंज इन स्टॉक, वी हैव टू ऐड वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी हैव टू ऐड, तो वो सिर्फ ये सोचते जाते हैं ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना, और होता ये है कई बार कि एक ही टर्म दो बार ऐड हो जाती है। वो कैसे? इफ़ वी हैव ऑलरेडी गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड सेल्स आल्सो, सो तो हम सेल्स पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो हम डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करेंगे एंड दैट्स ओवर। अगर हमें नहीं गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन वी मेक वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय एडिंग सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। सो अगर हमें गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम इस फॉर्मूले से चलेंगे, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट सर्च करना शुरू करेंगे, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगी? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, वो डायरेक्टली गिवन होगा हमें। अब अगर हमें सेल्स भी नहीं दे रखी है डायरेक्टली, तो फिर हमें सेल्स को कैलकुलेट करना होगा, वो क्या हो जाएगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। चेंज इन स्टॉक गिवन है देन ओके, नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, देयर विल बी चेंज इन स्टॉक एंड देन इंटरमीडिएट कंजप्शन विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट। देन नेशनल इनकम, अब ये तो बेस फॉर्मूला है, हमें इसी से चलना है। कोई भी एग्रीगेट हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम का प्रोडक्ट मेथड से, तो हमें इस बेस फॉर्मूले से चलना है, दिस वन। ओके, अब अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, वी ऑल नो नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देन सिंपल, वी हैव कैलकुलेटेड GDP एट मार्केट प्राइस, सो वी हैव टू change, we have to make GDP at market price to NNP at factor cost. G means gross, there is net, so gross को net में convert करने के लिए depreciation will be subtracted. Then domestic gross domestic product, domestic को हमें क्या करना है, national component में convert करना है, क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। देन देर इज मार्केट प्राइस बट वी वांट टू कैलकुलेट एट फैक्टर कॉस्ट, सो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल से हम इसको स्टडी कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कैसे होगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है हमारा, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड आउट, इतने यूनिट्स सोल्ड आउट हुई हैं, इतने यूनिट्स पर प्राइस पर यूनिट आउटपुट प्राइस हमारा कितना है, 30, मीन्स दिस इज Q एंड दिस इज P। डेप्रिसिएशन इज गिवन 100 करोड़ रुपीज़। इंटरमीडिएट कॉस्ट मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन 1200 करोड़। क्लोजिंग स्टॉक is 3,000 crore, opening stock is 2,000 crore, excise duty is 2,500 crore and sales tax is 3,500 crore. So start, क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम GDP एट मार्केट प्राइस एंड दिस विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस intermediate consumption, ठीक है। फर्स्टली I will search whether value of output is given or not, so it's clear value of output is not given, तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना होगा। कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक,
minus intermediate consumption. सेल्स भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं. सेल्स हमें गिवन है नो, सो हमें सेल्स भी क्या करनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी. वी हैव गिवन क्वांटिटी एंड गिवन प्राइस. तो सेल्स कैसे आ जाएगी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक. एंड चेंज इन स्टॉक इज़ नॉट आल्सो गिवन डायरेक्टली, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा. तो चेंज इन स्टॉक भी हम लिख लेते हैं साथ में ही, प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं कि हम सेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस प्लस इज दिस वन एंड हेयर वी आर कैलकुलेटिंग चेंज इन स्टॉक. So it will be closing stock minus opening stock. ओके, ये एज इट इज़. ठीक है, हमने इसको यहाँ कैलकुलेट किया, इसको यहाँ कैलकुलेट किया, माइनस intermediate consumption. I'm writing in short. Quantity was 300 units and the quantity was 1000 units and price was 30 plus closing stock 3000 and the opening stock 2000 minus intermediate consumption given है 12,000 crores. मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज़ 30,000 प्लस 1,000, माइनस करके आ गया 1,000 माइनस 12,000. तो क्या आ गया ये 31 माइनस 12, इट इज़ 19 ही आएगा. $19,000 crores. This is GDP, but we have to calculate, if we have to calculate national income, that is NNP at factor cost, then it will be GDP at market price minus depreciation for converting gross into net plus net factor income from abroad for domestic to national, and then minus net indirect taxes for market price to factor cost. This is 19,000 minus depreciation is given, that is 1,000. Net factor income not given. Not given means 0, nil. Net indirect taxes. Net indirect taxes क्या है? Excise duty and sales tax both are indirect taxes. Okay. For calculating net indirect taxes, we subtract subsidies from indirect taxes. Subsidies is not given, then subsidies will be 0. So it will be 2,500 plus 3,500. These are indirect taxes. We have to subtract subsidies. Subsidies are not given, it means they are 0. So it is 19,000 minus 1,000 माइनस, आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6,000. ओके, सो इट विल बी 12,000 crore. This is our national income. One more example in which this is second example. Value of output is given 200 crore rupees.
sales are 150 crore, intermediate consumption is 60 crore, indirect taxes 30 crore, subsidies 25 crore, net factor income from abroad 10 crore, depreciation is 20 crore. GDP at market price, we will go with the base formula. GDP at market price, value of output minus intermediate consumption. The value of output is already given, so we have no worry about sales. ठीक है, दिस इज, ये जो है ये कंफ्यूज करने के लिए है. हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी गिवन है, सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ये हमें तब चाहिए था जब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन ना हो, तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, इंटरमीडिएट कंजप्शन 60, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने 140 आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस. देन if we have to calculate the national income and NP at factor cost, that will be GDP at market price minus depreciation for converting gross into net, plus net factor income from abroad for converting domestic into national, and then net indirect taxes, subtract net indirect taxes for calculating market price to factor cost. So this is 140. Depreciation is given 20. Where is this? Net factor income from abroad 10. Net indirect taxes. Indirect taxes are not, net indirect taxes are not given. So we will calculate net indirect taxes by subtracting subsidies from indirect taxes. तो ब्रैकेट लगा के हम इसको सोल्व करेंगे ताकि जो माइनस साइन है उसकी वजह से कन्फ्यूज़न ना हो. हमने ये बाहर माइनस साइन एज इट इज़ रहने दिया, और हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्योंकि यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ब्रैकेट लगा करके करेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 30, सब्सिडीज़ 25. ओके, 140 माइनस 20 प्लस 10, दिस इज 30 माइनस 25. 5 ब्रैकेट के बाहर साइन था 5, तो माइनस 5 आएगा. ओके, माइनस साइन है तो इट विल बी माइनस. सो कैलकुलेट हम इसको कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 125 करोड़ रुपीस. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. इफ वी गो विथ द बेस फॉर्मूला इनिशियली एंड देन ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट इनटू that very component, that very aggregate which is asked in the numerical problem, it will be very simple, easy, and no chances of mistake. That is all for this lecture. Thank you so much. Bye and take care.